on the sides, the ribs, they make the sides of the thoracic cage. The head of the rib, they join with the, okay, head of the ribs, they make a joint with the thoracic um, vertebra, मैम स्क्रीन फुल and करते then हैं. they turn anteriorly हाँ on the lateral side, and then they come and join the costal cartilages, and the costal cartilages then join with the sternum. So here is the thoracic cage. These are the vertebra, thoracic vertebra. The ribs join the thoracic vertebra to the head, and the process of the vertebra, they join with the tubercle of the ribs. And then the anterior end of the rib joins with the costal cartilages, and then costal cartilages join with the sternum. So all these bones are joining each other, plus there are costal cartilages also. So we have a lot of joints. So it is whenever we study bones and there are so many bones, we need to study the joints also. So सबसे पहले we start with the joints of the rib. So head of the rib joins the head of the rib is on the posterior side. So head of the rib joins with the thoracic vertebra. Yesterday we talked about this also. The rib joining the, for example, this is the second rib and this is the third rib. Third rib is going to join with the corresponding vertebra. Head के ऊपर दो articular facets हैं, two facets. The lower facet is going to join with the corresponding numbering vertebra. Third अगर rib है, इसका lower facet, inferior facet is going to join with the third thoracic vertebra. Superior facet is going to join the second thoracic vertebra. ठीक है? So head के ऊपर, head of the rib, they make joints with two thoracic vertebra, one with the corresponding and one with the vertebra above. ये तो head का joint हो गया. फिर there is also a joint between the tubercle of the rib and the transverse process of the vertebra. ये भी एक joint हो गया. फिर when the ribs turn anteriorly, they make a joint with the costal cartilages, because the bones of the rib does not directly join with the sternum. Anterior end of the ribs, they make a joint with the costal cartilages, and these costal cartilages then join with the sternum. तो ये तो हो गए आपके ribs के joints. अगर हम आ जाए sternum की side पे, तो sternum, as we know, there is manubrium sterna is superiorly. Inferior to that is the body of the sternum. So a joint between the manubrium sterna and the body of the sternum is called the sternal angle or manubriosternal joint. Manubriosternal joint is also this sternal angle जिसकी हमने कल बात की, and this sternal angle is at the level of second costal cartilage or second rib. So आपने ribs count करनी हो तो it is very easy. You can palpate the sternal angle और उसके साथ जो attachment है, that is the second costal cartilage. उसके साथ then you can go on and count the ribs also. Okay. तो यहाँ पे sternum के आपको सबसे पता है laterally जो है, the uppermost surface of the manubrium sterna is for the clavicle. तो यहाँ पे sternoclavicular joint बनता है on the lateral side. यहाँ पे clavicle उन्होंने हटाई हुई है इस diagram में. उसके बाद नीचे आ जाए तो it joins the first costal cartilage. At the level of sternal angle there is second costal cartilage, then it goes on till the seventh. ठीक है? और बाकी मैंने आपको बताया था कि ये true ribs हैं और false हैं from 8, 9, 10. 8, 9, 10 जो है false है because their costal cartilage joins with the costal cartilage above. They do not join with the sternum directly. Okay. उसके बाद क्या होता है कि body of the sternum joins with the xiphoid process. So this is xiphisternal joint. तो xiphisternal joint जो है ये भी एक joint है. Plus interchondral joint, because ये eighth rib है, इसकी जो costal cartilage है, it is joining with the costal cartilage of the seventh. So interchondral joints भी है. So we have so many joints. Joints of the chest wall में जब हम पढ़ते हैं तो we have joints of the sternum. जैसे मैंने आपको बताया sternum किसके साथ join करती है, clavicle के साथ भी करती है, costal cartilages के साथ भी करती है. Within the sternum भी बहुत सारे joints हैं. Manubrium sternum के साथ है और body and manubrium sternum के बीच में है, और body of the sternum और उसके बाद xiphoid process के साथ भी है joint. Then joints of the ribs, मैंने आपसे बात की, head of the rib joins with the body of the vertebra, corresponding vertebra plus
the vertebra above. Tubercle joins with the makes a joint with the transverse process of the corresponding vertebra. Then joints of the ribs and costal cartilage. So anterior end of the rib joined with the costal cartilage. Plus we also have the interchondral joints. So ये बहुत सारे joints हैं जो हमने पढ़ने हैं. तो joints of the head of the rib. Joints of the head of the rib मैंने आपको बताया था कि rib के अंदर joints of the head of the rib में क्या होता है कि head of the rib, as I told you, हम पीछे जाके rib की एक diagram भी देख लेते हैं. It has two articular surfaces on the head. ये अगर आप देखें तो यहाँ पे this is the head of the rib on the posterior side. This is the posterior end of the rib showing the head and the neck and then the tubercle. Head के ऊपर दो demi facets हैं. So मैंने आपको बताया था the rib joins with the body of the vertebra, corresponding body of the vertebra through the inferior facet. So inferior facet is going to join. अगर ये seventh rib है तो seventh thoracic vertebra के साथ join करेगा inferior वाला facet. Superior facet joins with the vertebra above. So ये दो demi facets है और इनके बीच में एक crest है, ठीक है? तो ये crest जो है, this attaches with the ligament, intra-articular ligament. ये articulation एक बन गई और ये intra-articular ligament है. ये ligament जो है जाके attach होती है दो vertebra के दरमियान में intervertebral disc है. इस disc के साथ जाके attach हो जाती है, ठीक है? ये corresponding vertebra के साथ इसका joint बनेगा, inferior facet का, superior facet का, upper vertebra के साथ बनेगा, one vertebra above. और ये उन दोनों वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है यहाँ पे वो लिगामेंट अटैच होगी, इंट्रा-आर्टिकुलर लिगामेंट. ये तो हो गए इसके हेड की. उसके बाद अगर आप आ जाएं इसके ट्यूबरकल की तरफ, सो दिस इज द ट्यूबरकल ऑफ द रिब पे एक आर्टिकुलर पार्ट है, एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट है. ये कल हमने बात की थी. आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल मेक्स अ जॉइंट विद द फेसेट ऑन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा. अगर ये फिफ्थ रिब है तो फिफ्थ वर्टिब्रा का जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके साथ इसने जॉइंट बनाना है, ठीक है? तो आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल इज गोइंग टू मेक अ जॉइंट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा. नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो है ट्यूबरकल का, यहाँ पे लिगामेंट अटैच होती है. ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिगामेंट एक अटैच होती है. दिस इज दी ओके. ये तो इसका पोस्टीरियर एंड हो गया. इसके बाद रिब जाएगी, एंगल इसका है, इट इज गोइंग टू टर्न एंटीरियरली एंड दिस इज द एंटीरियर एंड at this region it is going to make a joint with the costal cartilage. तो ये costochondral joint होगा. So ये हम आगे चलते हैं joints की तरफ. तो हम पढ़ रहे थे कि joint of the head of the rib, intra-articular ligament होगी within the joint, ठीक है? Because दो demi facets हैं, दोनों demi facet के बीच में crest है और उस crest के साथ ये ligament attach होगी. रेडिएट लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द ट्राई रेडिएट लिगामेंट होगी, जो एक तो इंट्रा-आर्टिकुलर होगी और आर्टिकुलेशन के बाहर लिगामेंट जनरली होती हैं. तो वो जो लिगामेंट है वो बाहर इसके होगी. ये आपको नजर आ रहा है डेमी फेसेट. ये T5 है वर्टिब्रा. तो दिस इज द फिफ्थ रिब. ये यहाँ पे फिफ्थ रिब इंफीरियर फेसेट के साथ इसके साथ अटैच हो रही है, सुपीरियर फेसेट के साथ T4 के साथ अटैच हो रही है. इसके बीच में एक जो क्रेस्ट है इन दोनों डेमी फेसेट्स के बीच में, ये यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे बड़ा अच्छा नजर आ रहा है. एक जगह पे मैं आपको दिखाती हूँ. ये तो इसकी ये देखिए, ये इंफीरियर फेसेट है, ये सुपीरियर फेसेट, ये वर्टिब्रल बॉडी इसके फेसेट है. दिस इज द फेसेट. सुपीरियर फेसेट ऑफ द बॉडी इज गोइंग टू जॉइन विद द इंफीरियर फेसेट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग रिब, ठीक है? रिब जो आ रही है, अगर ये T4 है तो फोर्थ रिब आ रही है, तो वो यहाँ पे ज्वाइन कर, उसका इंफीरियर फेसेट होगा, इसका सुपीरियर फेसेट होगा, ठीक है ना? उसके बाद जो रिब का सुपीरियर होगा वो इसका इंफीरियर होगा. ये T4 के साथ ज्वाइन कर देंगे एंड दिस इज द इन बिटवीन. यहाँ पे आके इंट्राआर्टिकुलर लिगामेंट, ये पूरा एक जॉइंट बन जाएगा और ये इंट्राआर्टिकुलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच होगी. ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, दो वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है. अब ये तो हो गया, ये इनर साइड आपको दिखा रहे हैं. यहाँ पे दिस इज द रेडियल लिगामेंट ऑफ द हेड. ये दिस हेड इज गोइंग टू अटैच बाय लिगामेंट्स टू द thoracic vertebra above and below. तो ये सारा जो है ये एक रेडिएट लिगामेंट है जो which is going to attach the head of the rib with the thoracic vertebra above and below. ये अटैचमेंट होगी इसकी superior facet of the thoracic vertebra is going to join with the inferior facet of the corresponding rib.
और उसके बाद उसी रिब का जो सुपीरियर फेसिट है इट इज गोइंग टू जॉइन विद द इंफीरियर फेसिट ऑफ द रिब ऑफ द thoracic vertebra above, और उनके दोनों के बीच में इंटरआर्टिकुलर ये लिगामेंट हो जाएगी, और बाहर ये होगी रेडिएट लिगामेंट्स। ये तो हेड का हो गया। उसके बाद आप अगर आ जाते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस की साइड पे, सो ट्रांसवर्स जो है इसका ट्यूबरकल ऑफ द रिब इज गोइंग टू मेक द जॉइंट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा। ये फिफ्थ रिब है तो ये फिफ्थ वर्टेब्रा है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और इसके साथ ये बन रही है, जॉइंट बन रहा है, ठीक है, जॉइंट ऑफ द ट्यूबरकल। अब ये जो मैंने बताया था आपको कि एक आर्टिकुलर पार्ट है, आर्टिकुलर पार्ट मेक्स जॉइंट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस, नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल ऑफ द रिब has an attachment of the to the lateral costotransverse ligament। तो अगर हम इसको दोबारा देखें तो ये इसका एंगल है, ये है ट्यूबरकल ऑफ द रिब। तो ये आर्टिकुलर पार्ट है जो इसके साथ रिब के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है, और जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वहां पे लिगामेंट अटैच हो रही है। लिगामेंट कौन सी अटैच हो रही है? लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है, लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इट्स लिगामेंट्स। हम दोबारा जरा पढ़ लेते हैं। तो कोस्टोट्रांसवर्स जॉइंट जो है उसमें क्या आ जाता है? कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट फ्रॉम द नेक ऑफ द रिब टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंटीरियर स्टेम। तो कोस्टोट्रांसवर्स खाली अगर हम कहते हैं कोस्टोट्रांसवर्स, इसका मतलब है कि वो नेक से लिगामेंट निकल रही है और ट्रांसवर्स प्रोसेस तक जा रही है, एंड दिस मेक्स द एंटीरियर स्टेम। तो ये कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट, दिस इज द नेक ऑफ द रिब, दिस इज द हेड, दिस इज द नेक, दिस इज द ट्यूबरकल। तो ये नेक से निकल के, ये सुपीरियर कार्टिली है, ठीक है, नेक से निकल रही है लिगामेंट और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस तक जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड द कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट। दूसरी जो है ये आपने लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स पढ़ ली, और एक सुपीरियर कोस्टोट्रांसवर्स है। सुपीरियर कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट अटैचेस द ट्रांसवर्स प्रोसेस अबव, ये जो ऊपर वाला जो वर्टेब्रा है उसके साथ इसकी अटैचमेंट होती है। तो लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स फ्रॉम द ट्यूबरकल ऑफ द रिब टू द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है, दिस फॉर्म्स द पोस्टीरियर स्ट्रैंड। तो एक इसकी एंटीरियर स्ट्रेंथ है जो नेक वाली रिब है, एक इसकी पोस्टीरियर स्ट्रेंथ है जो लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट है। बार बार हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। सो दिस इज द लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट एंड दिस इज द costotransverse ligament, this forms the anterior strand। ये बॉडी एंटीरियर साइड पे होती है, तो दिस इज द एंटीरियर पार्ट। तो ये एंटीरियर costotransverse ligament है, और ये एंटीरियर strength है formed by the costotransverse ligament, and this is the posterior strength formed by the lateral costotransverse ligament। उसके बाद आ जाती है superior costotransverse ligament, broad band joins the neck of the rib to transverse ligament, transverse process superior to it। अच्छा, अब ये जो लिगामेंट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। This is the ligament, ये नेक को ज्वाइन कर रही है विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द अबव वर्टेब्रा। ये T5 है, तो इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है दिस इज गोइंग, यहाँ से निकलेगी लिगामेंट और T4 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ, सुपीरियर है ना इसका नाम, तो सुपीरियरली जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वहां पे जाके अटैच हो जाती है। तो ये हमारे पास तीन किस्म की लिगामेंट्स आ गई। कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट नेक से शुरू होती है और ट्रांसवर्स प्रोसेस तक जाती है। एंटीरियर स्ट्रैंथ है, लेटरल जो है वो निकलती है ट्यूबरकल से, नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल, और टिप पे जाती है ट्रांसवर्स प्रोसेस की। पोस्टीरियरली स्ट्रैंथ इसको प्रोवाइड करती है। एक सुपीरियर है जो क्रेस्ट ऑफ नेक से शुरू होती है और गोज सुपीरियरली, divides into strong anterior and weak posterior transverse ligament। इसके बैंड्स होते हैं, तो अगर आपने याद करने हैं तो अदरवाइज superior costotransverse ligament connects the rib to the transverse process of the vertebra above, ठीक है। ओके, दोबारा हम करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जॉइंट्स हैं रिब के, इसके बहुत सारे जॉइंट्स हैं, स्टर्नम के हैं, हेड के हैं, हेड ऑफ रिब के हैं, ट्यूबरकल ऑफ द रिब के होंगे, उसके बाद रिब कॉस्टल कार्टिलेजेस के होंगे, इन बिटवीन कॉस्टल कार्टिलेजेस के भी है। हेड जो है दिस मेक्स जॉइंट विद द बॉडी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा। हेड के ऊपर दो ट्यूबरकल है, दो डेमी फेसेट्स हैं फॉर द आर्टिकुलेशन। जो इंफीरियर फेसेट है दिस इज गोइंग टू मेक जॉइंट विद द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा, और उस वर्टेब्रा का वो इंफीरियर फेसेट होगा, ठीक है ना। मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये फॉर एग्जांपल ये T5 है, तो दैट मींस दिस इज द फिफ्थ रिब। दिस फिफ्थ रिब, इसका जो होगा ये इंफीरियर फेसेट होगा, लेकिन फिफ्थ रिब का सुपीरियर फेसेट है। ये एक जॉइंट ये इसके साथ ज्वाइन कर है, और जो दूसरा डेमी फेसेट है इसका,
जो सुपीरियर फेसेट है, दिस जॉइंस विद द इंफीरियर फेसेट ऑफ T4. तो हेड के दो डेमी फेसेट्स हैं. Inferior joins with the superior facet of T5. Superior joins with the inferior facet of T4 vertebral body. ठीक है ना. अच्छा, अब ये जो फेसेट है, ये दो फेसेट है, इन दोनों के बीच में एक क्रेस्ट है और उस क्रेस्ट के ऊपर आके अटैच होती है लिगामेंट, जो जिसको हम जाहिर है एक जॉइंट बन गया है, वो इट इज इनसाइड द जॉइंट दिस लिगामेंट, इट इज कॉल्ड इंट्राआर्टिकल लिगामेंट ऑफ द हेड. ठीक है, ऑफ द रिब. और इसके बाहर जो है एक और लिगामेंट है, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए. ये लिगामेंट जो है आउटसाइड द जॉइंट, दिस इज कॉल्ड द रेडिएट लिगामेंट. ये रेडिएट लिगामेंट हेड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. उसके बाद हमने बात की थी कि ये तो हेड के हो गई का जॉइंट हो गया. उसके बाद देयर इज द जॉइंट बिटवीन द tubercle of the rib and the transverse process of the corresponding vertebra. ठीक है. अब tubercle की जब हमने बात की थी तो आई टोल्ड यू कि tubercle यहाँ पे होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक इसका articular पार्ट है, एक नॉन articular पार्ट है. जो articular पार्ट है tubercle का, this makes a joint with the transverse process of the corresponding vertebra. जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है वो लिगामेंट उस पे अटैच हो जाती है. लिगामेंट कौन सी अटैच होती है? इसको हम कहते हैं लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट. तो यहाँ पे लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच होगी. सो ये अगर हम देखें तो दिस इज द जॉइंट बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल ट्यूबरकल. अच्छा जी, अब इसकी जो जॉइंट बना रहा है वो तो आर्टिकुलर पार्ट है. नॉन आर्टिकुलर पार्ट पे ये लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट अटैच हो गई है, व्हिच इज अटैचिंग टू द tip of the transverse process and the non-articular part of the tubercle of the rib. ये हो गई. उसके बाद हमने एक ये लिगामेंट पढ़ ली जो है आपकी जो जॉइंट बन रहा है tubercle and the transverse process के जो बन रहा है ये जॉइंट, इसकी ये लिगामेंट है lateral costotransverse ligament. ठीक है. उसके बाद एक लिगामेंट होती है कोस्टोट्रांसवर्स. एक तो लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स होगी, एक खाली कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट है. कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट स्टार्ट करती है नेक ऑफ द रिब के साथ और ये भी ट्यूबरकल के साथ ये आ जाती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच हो जाती है. तो दिस फॉर्म्स द एंटीरियर स्ट्रेंथ ऑफ द दिस एरिया एंड दिस फॉर्म्स द लैटरल स्ट्रेंथ. ये पूरा जॉइंट का ये एंटीरियर स्ट्रेंथ बनती है कोस्टोट्रांसवर्स, और लैटरल कोस्टोट्रांसवर्स फॉर्म्स द पोस्टीरियर स्ट्रेंथ. उसके अलावा देयर इज अनदर थर्ड लिगामेंट सुपीरियर कोस्टोट्रांस. सुपीरियर जो है वो नेक से शुरू होती है एंड इट जॉइंस विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा अबव. ये अगर फिफ्थ है तो ये फोर्थ के प्रोसेस के साथ जाके अटैच हो जाएगा. सो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये रिब का ये है सुपीरियर कोस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट. ये इज गोइंग टू अटैच विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा अबव. तो ये तीन जो है आपकी लिगामेंट्स आ गई कोस्टोट्रांसवर्स जॉइंट्स की. एक तो हेड का जॉइंट बन गया, रिब्स की जॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो एक तो हेड जॉइंट बनाता है विद द वर्टिब्रल बॉडी. उसके बाद ट्रांसवर्स प्रोसेस जॉइंट्स बनाते हैं विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस एक जॉइंट विद द ट्यूबरकल ऑफ द रिब. तो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स जो है अभी आपको नजर आ रहा है, दीज आर द कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स बिकॉज एक तो ये कोस्टल रिब ने जॉइंट बनाई वर्टिब्रल बॉडी के साथ, फिर रिब ने बनाई विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस. तो दीज आर बोथ कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स एंड दीज आर प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स. अब जॉइंट्स जब भी हम पढ़ते हैं तो आपको ये आपका अपना रिवाइज करना पड़ता है. आपको पता है बॉडी में कितने टाइप्स होते हैं जॉइंट के. फाइब्रस जॉइंट होता है, then we have the cartilaginous joint. fibrous joint में क्या आता है? sutures आते हैं आपके, उनमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती. syndesmosis होता है, गोम्फोसिस होती है टीथ में जो होते हैं. उसके बाद cartilaginous joints होते हैं. cartilaginous joints में प्राइमरी cartilaginous joints होते हैं जो एपिफिसिस डायफिसिस के दरमियान होते हैं, और भी जगहों पे हैं, यहाँ पे भी होंगे, मैं आपको बताऊंगी. उसके बाद then we have the secondary cartilaginous joints which are also called symphysis. So rib cage में जब आप देखेंगे प्राइमरी cartilaginous joint भी हैं कुछ और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी हैं. उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट जो एक फाइब्रस हो गए, कार्टिलेजिनस हो गए, थर्ड जो होते हैं हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं. अब डायआर्थरोसिस जिन्हें कहते हैं, जिनमें मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, वो 7 टाइप्स के होते हैं. उनमें से एक ये होता है प्लेन साइनोवियल जॉइंट. सो जो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स है दीज आर ऑल प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स. ठीक है. तो ये जब भी हमने जॉइंट पढ़ना है, एज आई टोल्ड यू, जॉइंट पे हमने क्या क्या चीजें पढ़नी होती है, उसकी आर्टिकुलेशन पढ़नी होती है, उसकी टाइप पढ़नी होती है, उसके लिगामेंट्स पढ़नी होती है. तो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं हेड के हैं, उसके ट्यूबरकल के, दीज आर प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स. अच्छा जी, अब हम आगे जाते हैं कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स. कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट, कोस्ट मींस रिब और कॉन्ड्रल इज
cartilage, ठीक है। तो costochondral joints are the joints between the rib and the cartilages। ये अगर आप देखें तो ये रिब और कार्टिलेज के दरमियान में जो जॉइंट बनेगा इसको हम कहते हैं costochondral joints। अब costochondral joints जितने भी हैं, ठीक है, ये प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स हैं। और ये आपको मैंने कल भी बताया था कि ये जो कार्टिलेज होती है कॉस्टल कार्टिलेज, दीज आर हाईलाइन कार्टिलेज, आपने पहले भी पढ़ा होगा। सो ये जो जॉइंट्स बनते हैं ये प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स हैं, ठीक है। अब प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स आपको मैंने बताया था, कार्टिलेजनस जॉइंट जो दो किस्म के होते हैं, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। तो कोस्टोकॉन्ड्रल जो है वो प्राइमरी कार्टिलेजनस टाइप ऑफ जॉइंट्स है। स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट, अब स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट कौन से हैं? जो स्टर्नम कॉस्टल कार्टिलेजेस के साथ अटैच होती है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सेवंथ तक ये अटैच होगी। तो ये दीज आर दी स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट्स। स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट जो पहला वाला है, फर्स्ट, दैट इज सिनकॉन्ड्रोसिस। दिस, ये जो पहला वाला है कोस्टोकॉन्ड्रल, दिस इज सिनकॉन्ड्रोसिस। अब सिनकॉन्ड्रोसिस क्या होता है अगर आप याद करें, प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट होता है। तो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट जो है वो फर्स्ट costal cartilage attaches with the sternum, वो जो joint है that is primary cartilaginous synchondrosis। लेकिन जो सेकंड से लेके 7 तक है, these are plain synovial joints। तो आप डायग्राम देखते हैं, ये फर्स्ट जो है synchondrosis है, ठीक है। सेकंड से लेके 7 जो है हमारे पास, ये कौन से प्लेन synovial joints है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंटरकॉन्ड्रल synovial plain joints। इंटरकॉन्ड्रल कौन से हैं? दीज आर द जॉइंट्स जो कार्टिलेजेस के दरमियान में है। ये 7th है, ये 8 9, ये 10th रिब है, 8 9 की, ये 7th है। ये 7th अटैच हो रही है स्टर्नम के साथ, 8th जो है 7th के साथ अटैच हो रही है, 7th 9th जो है 8th के साथ। दीज आर इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स। तो जो इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स हैं बिटवीन द कार्टिलेजेस, दीज आर साइनोवियल प्लेन जॉइंट्स, ठीक है। तो हम दोबारा एक दफा यहीं से वापस जाते हैं और रिवाइज करते हैं। कोस्टोकॉन्ड्रल मींस रिब और कार्टिलेजेस के दरमियान, तो ये क्या है? प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स है। और प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट हमारे पास कहाँ है? फर्स्ट जो स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट है वो भी प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट है। और उसके बाद तीसरा मैं आपको बताऊं जो ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट है, ज़ीफर्ड प्रोसेस और बॉडी ऑफ द स्टर्नम के दरमियान में, वो भी प्राइमरी कार्टिलेजनस है। तो याद करने के लिए दिस इज एन इजी वे कि यहाँ पे 3 जगह पे प्राइमरी कार्टिलेजनस, कोस्टोकॉन्ड्रल जो वो भी प्राइमरी कार्टिलेजनस है, फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल भी प्राइमरी कार्टिलेजनस है, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट भी प्राइमरी कार्टिलेजनस है। तो ये 3 जगह पे हमारे प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड टू 7th जो स्टर्नोकॉस्टल है। पहला तो हमने क्या किया था? प्राइमरी कार्टिलेजनस। सेकंड टू 7th जो है वो साइनोवियल प्लेन जॉइंट्स है, ठीक है। साइनोवियल प्लेन जॉइंट्स हमने पहले कहा था कि कॉस्टोवर्टिब्रल जो है, जो हेड ऑफ द रिब और ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जो बनते हैं ट्यूबरकल का, वो भी प्लेन साइनोवियल है। तो ये सेकंड टू 7th जो, ये तो फर्स्ट हमने क्या बताया था? सिनकॉन्ड्रोसिस प्राइमरी कार्टिलेज। बाकी सेकंड टू 7th जो है स्टर्नोकॉस्टल, ये कौन से हैं? साइनोवियल प्लेन जॉइंट्स है, ठीक है। ज़ीफी स्टर्नल हमने बात कर ली कि प्राइमरी कार्टिलेजनस है। उसके बाद आ जाते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर, ये तो आपका पुराना पेट है। तो सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, ये तो आपको याद है। मिनोब्रियम स्टर्नल जॉइंट, मिनोब्रियम स्टर्नल जॉइंट कौन सा है? बिटवीन द मिनोब्रियम एंड द स्टर्नम, ये वाला स्टर्नल एंगल वाला, दिस इज सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। अब सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट क्या कहते हैं? उसको हम सिम्फिसिस भी कहते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट को हम सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं। ये आपका जीए की रिवीजन हो रही है। सो प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट सिनकॉन्ड्रोसिस जो 3 जगह पे है हमारे पास रिब केज में, एक कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट में है, फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल में है, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट में प्राइमरी कार्टिलेजनस सिनकॉन्ड्रोसिस। सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट या सिम्फिसिस हमारे पास मिनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट पे है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है, जो वर्टिब्रल बॉडीज के दरमियान में जो जॉइंट बनता है, दैट इज आल्सो सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट, ठीक है। जो 2 वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, दैट इज आल्सो अ जॉइंट, दैट इज अ सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट। तो ये रिब केज अगर हम देखते हैं तो 2 जगह पे सेकेंडरी कार्टिलेजनस जॉइंट है, मिनोब्रियोस्टर्नल जॉइंट और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। 3 जगह पे प्राइमरी कार्टिलेजनस जॉइंट है, कोस्टोकॉन्ड्रल, फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल और ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट। उसके अलावा जो हमारे पास कोस्टोवर्टिब्रल है, रिब और वर्टिब्रा के दरमियान, फिर इंटरकॉन्ड्रल है,
आपस में जो कार्टिलेज कॉस्टल कार्टिलेजेस के दरमियान के जॉइंट्स हैं, सेकंड टू सेवंथ साइनो जो स्टर्नोकॉस्टल है वो भी साइनोवियल प्लेन जॉइंट्स है। तो 3-4 किस्म के आपने प्लेन जॉइंट्स, साइनोवियल प्लेन जॉइंट्स हैं। यहाँ पे प्राइमरी कार्टिलेजिनस है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस है, और आपके पास एक स्टर्नोक्लेविकुलर सैडल टाइप ऑफ प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। तो these are the types of joints which are present in the thoracic cage, and they form the and these are important joints. uh, because why are they important? Because thoracic cage वो जगह है जहाँ which encases the lungs. अब आपने रेस्पिरेशन करनी है, लंग्स ने एक्सपैंड करना है। लंग्स कैसे एक्सपैंड करेंगे जब तक थोरेसिक केज एक्सपैंड ना करे? थोरेसिक केज की मूवमेंट्स होती हैं, मूवमेंट्स ऐसे होती हैं कि उसके डायमेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप थोरेसिक केज देखें तो क्या होता है, ये केज है ना, एक इसका एपी डायमीटर होगा, एक इसका ट्रांसवर्स डायमीटर होगा, एक इसका वर्टिकल डायमीटर होगा, ठीक है। सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर से लेके नीचे डायफ्राम जिसको क्लोज करता है वहां तक ये डायमेंशंस जब इंक्रीज होंगे तो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी, और तभी आप इंस्पिरेशन होगी एंड यू आर गोइंग टू टेक द एयर इनसाइड द लंग्स, ठीक है, इंस्पिरेशन होगी। तो ये जॉइंट्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ जॉइंट बनता है और कहाँ कैसे इनकी मूवमेंट होती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम। ये जॉइंट जो है इनकी मूवमेंट्स ऐसी होती है कि ये इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम इनसाइड द थोरेसिक केज सो दैट इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस, और फिर ऑपोजिट मूवमेंट वापस जब होती है तो एक्सपिरेशन आल्सो टेक्स प्लेस। तो हम एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि जॉइंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी बात मूवमेंट्स की करेंगे। तो जॉइंट्स ऑफ द चेस्ट वॉल, जॉइंट्स ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम जो है वो जॉइंट बनाता है मेनोब्रियम स्टर्ना एंड बॉडी के दरमियान जॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद बॉडी और ज़ीफी स्टर्नम के दरमियान जॉइंट हो गया। तो स्टर्नम और बॉडी के दरमियान जो बना था सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, मैं साथ साथ रिवाइज करती हूँ, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सिम्फिसिस। ज़ीफी स्टर्नम और बॉडी के दरमियान जो बनता है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है, या सिनकॉन्ड्रोसिस भी उसे कहते हैं। फिर यहाँ पे हेड ऑफ द रिब मेक्स जॉइंट विद द बॉडी, tubercle of the rib makes joint with the transverse process of the corresponding vertebra। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिब्स और वर्टेब्रल बॉडी वर्टेब्रा के दरमियान है, तो ये कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट्स है। अभी कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट्स हेड भी बना, हेड है एक जॉइंट इसका, और हेड बनाता है जॉइंट विद द बॉडी एंड tubercle of the rib with the transverse process, these are plain synovial joints, ठीक है, हमने ये कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं स्टर्नम की अपर पार्ट पे। यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनता है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कौन सा बनता है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो है वो सैडल टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। उसके बाद आ जाता है कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट मींस रिब एंटीरियर एंड जॉइंट्स विद द कॉस्टल कार्टिलेज। तो ये कौन से हैं? ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। उसके बाद क्या आ जाता है आपके इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट। ये इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट्स हैं जो कॉस्टल कार्टिलेजेस आर जॉइंट विद ईच अदर, ये कॉस्टल मार्जिन बना रही हैं। दीज आर प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टर्नोकॉस्टल, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस है, मैंने आपको बताया था। जो स्टर्नोकॉस्टल पहला जो है ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस है, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस हमने कहा था कि 3 जगह पे प्राइमरी कार्टिलेजिनस सिनकॉन्ड्रोसिस 3 जगह पे है। एक तो ये फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल है, फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट प्लस कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स, ये जो है हमारे तीनों प्राइमरी कार्टिलेजिनस हैं। उसके बाद बाकी जो स्टर्नोकॉस्टल है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ तक ये अटैच होती है। ये जो है प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स है। ये प्लेन साइनोवियल है, ये भी प्लेन साइनोवियल है, कॉस्टोवर्टेब्रल, ठीक है। और बाकी हमने पढ़ लिया ये सैडल टाइप है, और इंटर जो कॉन्ड्रल जॉइंट्स है ये भी प्लेन साइनोवियल है। और ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो मैंने आपको बताया था सिम्फिसिस मेनोब्रियम स्टर्नाई और बॉडी ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नल एंगल वाला जो जॉइंट है ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस प्लस इंटरवर्टेब्रल डिस्क, ये वाला जॉइंट बिटवीन द बॉडी ऑफ द टू वर्टेब्रा,
इंटरवर्टिबल जॉइंट जो बॉडीज के दरमियान है, ये भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो 3 जगह प्राइमरी है, 2 जगह सेकेंडरी है, बाकी जो है वो सारे प्लेन साइनोवियल जॉइंट है, अगर इस तरह आप याद करना चाहें तो, क्योंकि ये बार बार भूलता है। अच्छा जी, जॉइंट्स की, लिगामेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो हेड ऑफ द रिब, मैंने आपको बताया था कि हेड के ऊपर 2 फेसेट्स होते हैं। ये जो डेमी फेसेट्स हैं, एक इंफीरियर होता है, एक सुपीरियर होता है। इंफीरियर डेमी फेसेट जॉइंट्स विद दी, मैं आपको डायग्राम दोबारा वापस जाके दिखा देती हूँ। तो इंफीरियर डेमी फेसेट जॉइंट्स विद दी, दिस इज द रिब। तो इंफीरियर डेमी फेसेट जॉइंट्स विद दी कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा है उसकी बॉडी की इंफीरियर फेसेट के साथ ज्वाइन हो जाता है। और ये वाला जो है सुपीरियर फेसेट, इट जॉइंट्स विद द वर्टेब्रल बॉडी व्हिच इज अबव, वन अबव इट। ठीक है, सो ये दिस इज अ बेटर पिक्चर। सो इसका एक ये इंफीरियर फेसेट है, ये सुपीरियर facet is inferior facet joins with the superior facet of the corresponding vertebra and superior facet joins with the inferior facet of the one vertebra which is above it। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ट्यूबरकल का। तो ये दोनों जो हैं, हेड का जॉइंट और ट्यूबरकल का कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट है। तो जो ट्यूबरकल का एरिया है, ट्यूबरकल में एक आर्टिकुलर पार्ट है, एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। आर्टिकुलर पार्ट जॉइंट्स विद द tubercle of transverse process of the corresponding vertebra। Tubercle of the articular facet of the tubercle of the rib joins with the transverse process of the corresponding vertebra। नॉन आर्टिकुलर पार्ट जो है इसका, वहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होती है, मैंने आपको बताया था, ये लैटरल कॉस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट है। ये नॉन आर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ट्यूबरकल ऑफ द रिब पे अटैच होगी और दूसरी जगह पे जाके ये टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अटैच होगी। अब यहाँ पे जो लिगामेंट्स है, ये तो लैटरल होगी, एक इंटीरियर लिगामेंट है जो नेक से शुरू होती है और ट्रांसवर्स प्रोसेस तक जाती है, एक सुपीरियर है which starts with the tubercle, starts with the neck area and goes towards the transverse process of the vertebra which is above it। This is the superior costotransverse ligament। neck से शुरू के ऊपर वाले ट्रांसवर्स प्रोसेस पे चली जाती है। तो लैटरल कॉस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट जो पोस्टीरियर स्ट्रैंड देती है, खाली जो कॉस्टोट्रांसवर्स लिगामेंट है नेक से शुरू होकर ट्रांसवर्स प्रोसेस तक जाती है, इंटीरियर स्ट्रैंड देती है, और एक ये सुपीरियर वाली होगी। और हेड की जो लिगामेंट्स है, एक दो ये होगी इंट्राआर्टिकुलर, क्योंकि ये बीच में डेमी फेसेट्स के दरमियान में जो क्रेस्ट है वो इसके इंटरवर्टेब्रल डिस्क तक जाती है, तो ये इंट्राआर्टिकुलर लिगामेंट होगी। उसके अलावा ये एक रेडिएट लिगामेंट है जो हेड को अटैच करती है लिगामेंट्स विद द वर्टेब्रा अबव एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेब्रा। तो ये एक रेडिएट लिगामेंट होगी, एक इंट्राआर्टिकुलर इसके जॉइंट के अंदर होगी। उसके अलावा ये जो ट्रांसवर्स जो ट्यूबरकल ऑफ द रिब है उसके इर्द गिर्द ये 3 लिगामेंट्स है, लैटरल कॉस्टोट्रांसवर्स, कॉस्टोट्रांसवर्स एंड सुपीरियर कॉस्टोट्रांसवर्स। ये आपकी लिगामेंट्स होगी यहाँ पे। अब और ये जो जॉइंट्स हैं प्लेन साइनोवियल, कॉस्टोवर्टेब्रल जॉइंट्स आर ऑल प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स, ये हमने बात कर ली थी। अब आ जाते हैं हम जी कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट्स पे, जो रिब्स और कॉस्टल कार्टिलेजेस के दरमियान में ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, और सिफिस्टर्नम भी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। 3 कार्टिलेज, एक ये कार्टिलेजिनस है, एक ये कार्टिलेजिनस, एक फर्स्ट स्टर्नोकॉस्टल जो है वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस। तो 3 प्राइमरी कार्टिलेजिनस हो गए, ठीक है ना। उसके अलावा प्लेन साइनोवियल जॉइंट्स है, सेकंड से लेके 7th जो स्टर्नोकॉस्टल जॉइंट है वो प्लेन साइनोवियल जॉइंट है। स्टर्नोक्लेविकुलर आपको पता है सैडल है। मेनोब्रियोस्टर्नल बिटवीन द मेनोब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड इंटरवर्टेब्रल जो है ये है हमारे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, या जिनको हम सिम्फिसिस भी कहते हैं। तो ये हो गए। अब हमने थोड़ी सी मूवमेंट का करना है कि अब जॉइंट्स जब पढ़ लेते हैं तो जॉइंट्स के बाद क्या होता है, टाइप्स भी पढ़ ली हमने, इसकी लिगामेंट्स भी पढ़ ली, मूवमेंट्स इसमें कौन सी होती हैं। जॉइंट्स इसलिए होते हैं, इसीलिए होते हैं कि मूवमेंट है, वरना एक पूरा केज अल्लाह मियां बना देता, मूवमेंट की जरूरत ना होती तो बस ठीक है पढ़ा हुआ है, लेकिन मूवमेंट चाहिए। तो मूवमेंट्स के लिए ये जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट्स होती हैं ताकि उसका फंक्शन हो सके। अच्छा जी, अब फंक्शन इसका मूवमेंट जो है, किस लिए हमें thoracic cage की मूवमेंट चाहिए? वी नीड मूवमेंट टू इंक्रीज इट्स डायमीटर्स। डायमीटर्स की हमने बात की थी, तो एक तो हो गया एपी डायमीटर, ठीक है ना, वर्टेब्रा से लेके स्टर्नम तक ये एपी डायमीटर हो गया। एक हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर, एक हो गया वर्टिकल डायमीटर, ऊपर से लेके नीचे डायफ्राम तक। इंफीरियर जो अपर्चर है दैट इज क्लोज बाय द डायफ्राम, और डायफ्राम सीधा एक मस्कुलर शीट नहीं है,
it rises up like this. ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये डोम ऑफ डायफ्राम, तो डायफ्राम ऐसे ऊपर राइज करता है, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक तकरीबन ये जाता है, 1 2 3 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक इसकी डोम जाता है ऊपर तक। इसका मतलब क्या है कि वर्टिकल डायमीटर तो यहाँ तक ही रह गया ना, ठीक है। तो हमें अगर स्पेस इंक्रीज चाहिए तो इस वर्टिकल डायमीटर को भी हमने इंक्रीज करना है, इस वर्टिकल डायमीटर को भी इंक्रीज करना है। तो ये 3 डायमीटर्स हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारी इंट्राथोरेसिक कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। इंट्राथोरेसिक कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो वी आर गोइंग टू इंस्पिरेशन होगी। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं। इंस्पिरेशन होती है व्हेन यू टेक द एयर इनसाइड, और एक्सपिरेशन होती है व्हेन यू ब्रीद आउट। तो एक ब्रीदिंग इन मूवमेंट होती है इंस्पिरेशन, ब्रीदिंग आउट मूवमेंट इसकी एक्सपिरेशन। अभी होती कितने हैं, 16 to 20 पर मिनट्स होती है रेस्टिंग पेशेंट्स में। रेस्टिंग पेशेंट में नॉर्मल आप रेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना काउंट करें 16 to 20 हो गए, ठीक है। बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा होती है, फास्टर होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो थोड़ी सी ब्रीदिंग रेस्टिंग में पर मिनट जो है आपकी रेस्पिरेशन वो कम हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द thoracic wall on the diaphragm produces increase in the intrathoracic volume and diameters of the thorax, मैंने आपसे बात कर ली। अच्छा, इसमें क्या है, वर्टिकल डायमीटर है। वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कैसे हम करते हैं कि डायफ्राम, अच्छा जी, डायफ्राम जो है वो नीचे होगा, मैं आपको दोबारा वो दिखा देती हूँ। सो दिस इज द डोम ऑफ द डायफ्राम। वर्टिकल डायमीटर कैसे होगा, डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, जैसे कंट्रैक्ट करता है ये इसके डोम्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स इट गोज डाउन एंड इंक्रीजेस द वर्टिकल डायमीटर। तो ये जो वर्टिकल डायमीटर है हम इंक्रीज करते हैं बाय कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। उसके बाद एपी डायमेंशन, एपी जो डायमीटर इंक्रीज होता है पंप हैंडल मूवमेंट से। तो गांव में आपने देखे होंगे पंप लगे होते हैं, यहाँ पे एक साइड से करते जाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना, तो इसी तरह ये पंप हैंडल मूवमेंट होती है। दिस इज शोइंग यू द पंप, दिस गोइंग, इट इज गोइंग अप एंड डाउन, यही होती है ना, पंप करते हैं आगे से पानी आता है, तो ये मूवमेंट होती है अप एंड डाउन मूवमेंट। दिस अकर्स इन द अपर 6 रिब्स। अपर 6 रिब्स में क्या होता है कि स्टर्नम जो है, रिब्स जो है जब मूव करती है, मूवमेंट अकर्स इन द हेड, हेड ऑफ द रिब पे मूवमेंट होती है और ये इसका एक्सिस ऑफ मूवमेंट है। जैसे ये मूव करता है हेड, यहाँ पे मूवमेंट होती है प्लेन साइनोवियल जॉइंट की, ये स्टर्नम एंड द रिब दे गो अप, एज दे गो अप इसकी यहाँ पे एपी डायमीटर इंक्रीज होता है। अब ये जो रिब्स की अलाइनमेंट ऐसे है, मैं आपको बता दूं कि रिब की अलाइनमेंट ऐसे होती है कि जो पोस्टीरियर एंड है इसका, इट इज लिटिल सुपीरियर, और फिर आगे नीचे आते हैं, ऐसे करके आती है, ठीक है। रिब जो है इसका जो पोस्टीरियर एंड है, इट लाइज लिटिल एट अ हायर लेवल, एट अ सुपीरियर लेवल, और आगे ये नीचे आती है। तो जब हेड पे मूवमेंट होती है तो ये वाला पोर्शन जो है 1 2 3 4 5 6 रिब्स, दे एलिवेट द स्टर्नम आल्सो। जैसे ये स्टर्नम को एलिवेट करते हैं तो एपी डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, ये डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द पंप हैंडल मूवमेंट। अब जो लोअर 6 रिब्स है, लोअर 6 रिब्स ये क्या करते हैं, इसकी मूवमेंट को हम कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट। बकेट हैंडल कैसे होता है, ये इधर से ऊपर नीचे, साइड से ऊपर नीचे जाता है। तो ये क्या करती हैं, ये रिब्स जो है इंक्रीज करते हैं दिस ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये जब रिब्स को ऊपर, ये वाली रिब्स जो है लोअर 6 रिब्स, when the intercostal muscles they contract, ये इंटरकॉस्टल मसल यहाँ कंट्रैक्ट करते हैं और रिब्स को ऊपर लेके जाते हैं। जब ये ऊपर लेके जाते हैं तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज कर देता है। यहाँ पे भी इंटरकॉस्टल मसल्स काम करें, लेकिन यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो एपी डायमीटर इंक्रीज कर रहे हैं दी अपर 6 रिब्स, और लोअर 6 रिब्स में क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द ट्रांसवर्स डायमीटर। सो जब मूवमेंट्स थोरेसिक वॉल की होती हैं, एक तो वो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कर देती है बाय कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, डोम्स गो डाउन एंड द वर्टिकल डायमीटर इंक्रीजेस। एपी डायमीटर कैसे इंक्रीज होती है, पंप हैंडल मूवमेंट से। पंप हैंडल मूवमेंट क्या होती है, अपर 6 रिब्स में मूवमेंट होती है। अपर 6 रिब्स जो है दे गो अप एंड द स्टर्नम आल्सो मूव्स अप, एंड दिस मूवमेंट अकर्स एट द हेड ऑफ द रिब, और यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ मूवमेंट पासेस थ्रू द हेड
और ये ऊपर जाता है, जैसे ही ऊपर जाता है की मूवमेंट इंक्रीज होती है। तो अपर सिक्स रिब्स की जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट। उसके बाद जो लोअर सिक्स की होती है उसको हम कहते हैं बकेट हैंडल, बिकॉज ये जो है एंगल इसका और रिब साइड से ये ऊपर जाते हैं, they are lifted by the intercostal muscles and they increase the transverse diameter। यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी ऊपर जाएंगे ऑब्वियसली, तो ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। वर्टिकल डायमीटर की समझ नहीं आई। वर्टिकल डायमीटर क्या होगा? गोइंग फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। वर्टिकल डायमीटर अगर आप थोरेसिक केज देखें, सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर से लेके नीचे डायफ्राम तक जाएगा। तो डायफ्राम का डोम, तो ये आपको डॉटेड लाइन अगर नजर आ रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल डायमीटर है। वर्टिकल क्या होता है? स्ट्रेट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे वर्टिकल डायमीटर है। अब इसको अगर हमने इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे? ये डायफ्राम जो है ये कंट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा तो नीचे हो जाएगा, दोनों डोम्स उसके नीचे हो जाएंगे, तो वर्टिकल डायमीटर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। वर्टिकल डायमीटर ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, ठीक है ना। मेरा मतलब यही है कि वर्टिकल व्हाट इज वर्टिकल? स्ट्रेट डाउनवर्ड्स। तो ये सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर से यहाँ तक आए तो दिस इज वर्टिकल डायमीटर, ठीक है ना। लेकिन जब डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा नीचे चला जाएगा तो यहाँ से और नीचे वर्टिकल डायमीटर बढ़ जाएगा, तो ये वर्टिकल डायमीटर है। ओके, सो हमने वर्टिकल डायमीटर भी इंक्रीज कर दिया बाय कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, और हमने अपर सिक्स रिब्स पे इंक्रीज कर दिया एपी डायमीटर बाय द पंप हैंडल मूवमेंट, और ट्रांसवर्स डायमीटर हमने इंक्रीज कर दिया बाय द बकेट हैंडल मूवमेंट ऑफ द लैटरल साइड ऑफ द रिब्स। लोअर सिक्स रिब्स जो है वो लैटरल साइड पे, एंगल की साइड पे दे आर लिफ्टेड अप, और ये ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो। तो अब हमने क्या किया कि हमने वर्टिकल डायमीटर भी इंक्रीज कर दिया बाय द कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। मैम ये वर्टिकल एपी डायमीटर बता दें डायमीटर दोबारा। इंक्रीज कर दिया बाय द पंप हैंडल मूवमेंट। ट्रांसवर्स डायमीटर हमने इंक्रीज कर दिया बाय द बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है। ये आपको एक्सिस ऑफ मूवमेंट नजर आ रहा है, ये पंप हैंडल मूवमेंट का। दिस इज द एक्सिस ऑफ द मूवमेंट पासिंग थ्रू द हेड एंड नेक ऑफ द रिब। ये जब इनकी इसके जब मूवमेंट होगी तो रिब जो है वो लिफ्ट होगी, ऊपर चली जाएगी, रिब जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी, स्टर्नम को भी ऊपर कर लेके जाएगी, तो ये एपी डायमीटर आपका इंक्रीज हो जाएगा। और ये लोअर रिब, ये तो अपर रिब है, अपर सिक्स, ये लोअर सिक्स रिब है। जब ये लोअर सिक्स रिब में क्या होगा? मूवमेंट होगा, तो ये इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ट्रांसवर्स डायमीटर, ये आपको नजर आ रहा है। तो ये तीनों डायमीटर जब हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि इस जो डायमेंशंस है, एपी का क्या मतलब? एपी का क्या मतलब है? एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर। एपी मींस एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, ये वाला डायमीटर, ठीक है। तो वर्टिकल ये हो गया, एपी का मतलब एंट्रोपोस्टीरियर, और ये ट्रांसवर्स डायमीटर। तो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीजेस बाय कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम, AP diameter or anteroposterior diameter increases by the pump handle movement. Transverse diameter increases by the bucket handle movement. ठीक है, अब समझ आ गई? अच्छा, अब ये डायमीटर जब इंक्रीज कर जाते हैं तो अंदर कैपेसिटी बढ़ गई है, तो इंस्पिरेशन होती है, ठीक है। अब होता क्या है नॉर्मल रेस्पिरेशन में? फर्स्ट स्टेप जो है वो फिक्स होती है। वो फिक्स किस लिए होती है? कि उसके ऊपर स्केलीन मसल अटैच होता है, ठीक है, एंटीरियर स्केलीन, वो मूव नहीं करता, तो ये अपनी जगह मूव करती है। उसके ऊपर इंटरकॉस्टल मसल तो है नहीं, इंटरकॉस्टल मसल तो रिब्स के दरमियान में होता है। तो ऊपर से अपर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब इज वहां पे स्केलीन, एंटीरियर स्केलीन ही अटैच है। अपर उसके ऊपर साइड पे तो इंटरकॉस्टल नहीं है ना, तो वो मूव नहीं करती। सेकंड टू सिक्स रिब जो है इनकी मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें जब आर्टिकुलर सर्फेसेस जो ट्यूबरकल्स पे हैं वो कॉन्वेक्स हैं, ट्यूबरकल ऑफ द रिब के जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कॉन्वेक्स है, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस का जो है वो कॉनकैविटी है, ठीक है, वो डिप्रेशन है, और ट्यूबरकल के ऊपर रिब है, तो ये जॉइंट बन रहा है, ठीक है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। तो यहाँ पे जब रोटेशन होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, और इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन हो जाती है। पंप हैंडल मूवमेंट मैंने आपको बताया था जैसे। अच्छा, और इसके बाद जो 7th to 10th है, वहां पे जब मूवमेंट होती है तो लैटरल पोर्शन जो है वो इंक्रीज होता है, और बकेट हैंडल मूवमेंट होती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये तीनों डायमेंशंस इंक्रीज करके अब हमने पढ़ना क्या है कि रेस्पिरेशन
किस तरह की होती है? एक तो क्वाइट रेस्पिरेशन है, आप आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कोई इतनी ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, भाग दौड़ नहीं हो रही, आराम से बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो क्वाइट इंस्पिरेशन है। क्वाइट रेस्पिरेशन या क्वाइट इंस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन भी आराम से हो रही है, एक्सपिरेशन भी आराम से हो रही है, कुछ ज्यादा आप एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है। इसमें क्या होता है, एपी डायमीटर जो पंप हैंडल से इंक्रीज हो गया, ट्रांसवर्स डायमीटर बकेट हैंडल से इंक्रीज होगी, वर्टिकल डायमीटर डिसेंट ऑफ डायफ्राम से हो गया। बस ये सिंपल एक इंस्पिरेशन हो गई। एक्सपिरेशन क्या होती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इंस्पिरेशन में है, इंस्पिरेशन में वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज बाय डिसेंट ऑफ डायफ्राम। खाली डायफ्राम जो है अगर ये डिसेंड करता है, वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करता है, तब भी क्वाइट इंस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो क्वाइट इंस्पिरेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट वर्टिकल डायमीटर की है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट है डायफ्राम की है। आराम से बैठे हम, क्वाइट रेस्पिरेशन हो रही है, डायफ्राम मूव करे जा रहा है और वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज कर रहे हैं, क्वाइट इंस्पिरेशन हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ये दो मूवमेंट्स भी होती हैं, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वाइट एक्सपिरेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग। लंग के अंदर इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू जो है वो पहले तो जब लंग एक्सपैंड करेगा उसके अंदर एयर चली जाएगी, और उसके बाद वो वापस इलास्टिसिटी से, जाहिर है जो इलास्टिक आप बढ़ा खींचते हैं तो वापस रिकॉइल करता है आराम से, तो ये इलास्टिक जो टिश्यू है लंग्स के अंदर वो रिकॉइल करेगा। तो इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग जो है दैट इज अ पैसिव फिनोमेना, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती नॉर्मल एक इंडिविजुअल में। क्वाइट एक्सपिरेशन क्या होती है, इलास्टिक रिकॉइल, लंग्स के अंदर इलास्टिक टिश्यू है जो रिकॉइल करता है और एक्सपिरेशन हो जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम भी रिलैक्स करता है और ऊपर हो जाता है, असेंड कर जाता है। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स भी थोड़े बहुत, उनकी टोन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है एक्सपिरेशन के लिए, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इंस्पिरेशन में कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है, और एक्सपिरेशन में इम्पोर्टेंट क्या चीज है, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में। अब डीप इंस्पिरेशन क्या होती है कि आप थोड़ा सा काम करने लगे हैं, थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज कर लिए, ठीक है ना, तो ज्यादा आप लंबे सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, कैपेसिटी थोरेसिक केज की इंक्रीज करनी पड़ती है। अब इंक्रीज कैसे होती है, एक तो क्वाइट रेस्पिरेशन की, जो क्वाइट इंस्पिरेशन की मूवमेंट है वो तो हो रही है, ठीक है ना। क्वाइट इंस्पिरेशन में क्या हो रहा था, डायफ्राम डिक्रीज कर रहा था, पंप हैंडल मूवमेंट हो रही थी, बकेट हैंडल मूवमेंट हो रही थी, ठीक है। क्वाइट इंस्पिरेशन, ये तो काम होंगे। उसके अलावा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप एलिवेट हो जाएगी स्केलिन मसल और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। तो ये दो जो मसल्स हैं स्केलिन, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, हाँ जी। Okay, so deep inspiration means the normal routine inspiration की जो movement है that is going to take place, but besides that first step is going to elevate. Normal quiet respiration में first step की movement नहीं होती, but deep inspiration में first step is going to elevated by the scalene muscle and the sternocleidomastoid also. ये भी काम करेंगे, they are going to take part in this, and concavity of the thoracic spine is going to decrease by rectus spinae. अब आपको डायग्राम में अगर दिखाऊं तो ये vertebral column है, it is not straight. वर्टिब्रल कॉलम क्या है, ये इसकी सर्वाइकल रीजन में कन्वेक्सिटी एंटीरियरली है, फिर थोरेसिक रीजन में इसकी कनकैविटी एंटीरियरली है, फिर एंटीरियर साइड पे लंबर की फिर कन्वेक्सिटी आ जाती है। तो अगर इसकी कनकैविटी बढ़ जाए तो भी डायमेंशंस इंक्रीज हो जाएंगे और कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर जो आपके थोरेसिक स्पाइन के जो मसल्स हैं, बैक के जो मसल्स हैं, वो इसकी कनकैविटी को, और ये कॉन्केविटी जो है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। ये जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि कॉन्केविटी इज गोइंग टू इंक्रीज नॉट डिक्रीज। तो क्या होगा कि ये स्पेस जो कैपेसिटी है थोरेसिक केस की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डीप इंस्पिरेशन में क्या होता है, योर क्वाइट रेस्पिरेशन की सारे काम हो रहे हैं, क्वाइट इंस्पिरेशन की सारी मूवमेंट्स हो रही हैं, प्लस मूवमेंट रिब भी एलिवेट हो रही है स्केलिन मसल की वजह से और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड की वजह से, और कनकैविटी भी बढ़ रही है। जब डिस्ट्रेस होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आपको डिस्ट्रेस क्यों होता है, किसी डिजीज में अगर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रेस हो गया तो ये मसल्स एक्स्ट्रा काम करते हैं, दे एक्ट वायलेंटली और ज्यादा
काम करते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि स्कैपुली हैव टू बी फिक्स्ड, ये फिक्स होते हैं ट्रेपेजियस, लेवेटस, स्कैपुलर एंड रोम्बॉइड मसल से, और सीरेटस इंटीरियर और पेक्टोरालिस माइनर जो है वो रिब्स को और ऊपर करते हैं। ये जो मसल एक्सेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन आप जब आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब यही है कि नॉर्मली दीज मसल्स डू नॉट एक्ट, बट जब डिस्ट्रेस है, आपको ज्यादा इनक्रीज करनी है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप इंट्राथोरेसिक कैपेसिटी आपने बढ़ानी है, तो क्या करते हैं, स्कैपुलर आर देन फिक्स्ड बाय ट्रेपेजियस, लेवेटस, स्कैपुलर, रोम्बॉइड मसल, और सीरेटस इंटीरियर, पेक्टोरालिस माइनर और रिब्स को ऊपर खींचते हैं, ठीक है, ताकि और ज्यादा डायमीटर्स इंक्रीज हो और कैपेसिटी बढ़ जाए। और आपने अगर किसी एस्थमेटिक पेशेंट को अगर देखा है, वो उसकी रेस्पिरेशन अगर आप देखें, जो पेशेंट स्ट्रेस में होता है तो वो किसी चेयर को पोस्टीरियरली से जाके वो पकड़ लेता है, और उनको क्या होता है उसमें स्टर्नल ओरिजिन ऑफ पेक्टोरालिस माइनर भी असिस्ट करता है, वो अपने स्कैपुला को वहां पे फिक्स करता है, और आपके मैक्सिमम जो चेस्ट के मसल्स हैं, बैक के मसल्स हैं, स्कैपुला के साथ जो मसल्स हैं, रिब्स पे जो जो मसल अटैच है, पेक्टोरालिस माइनर, मेजर, ये सारे दीज एक्ट, all these muscles take part in the movement of the chest wall in respiratory distress cases, okay? तो एक क्वाइट है जिसमें नॉर्मल डायफ्राम वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज करके इन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, उसके बाद पंप हैंडल मूवमेंट है, बकेट हैंडल मूवमेंट है, क्वाइट रेस्पिरेशन हो रही है। डीप इंस्पिरेशन में क्या है, फर्स्ट इट टेक्स पार्ट, थोरेसिक स्पाइन आल्सो टेक्स पार्ट, थोरेसिक स्पाइन जो है उसकी कनकेविटी जो है कॉनकेव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या होता है कि स्कैपुला को भी फिक्स कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो मसल्स सीरेटस इंटीरियर अटैच है, पेक्टोरालिस माइनर प्लस मेजर आल्सो टेक्स पार्ट, और ये सारे मसल्स दे एक्ट टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक केज। इंस्पिरेशन लंग्स की हम नहीं करेंगे क्योंकि लंग्स अभी आपने पढ़े नहीं है, तो इसलिए यू डोंट नो। काइट एक्सपिरेशन में इलास्टिक रिकॉइल होता है, ये मैंने आपको बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स। और उसके बाद इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं, और डायफ्राम की असेंट होती है। जो इंस्पिरेशन होती है वो रिब्स कैसे मूव करती हैं, वो इंटरकॉस्टल मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से मूव करती है। जो इंटरकॉस्टल एरिया में मसल्स हैं, वहाँ पे हमने पढ़ने हैं, तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं और वो रिब्स को एलिवेट करते हैं। तो ये एक्सपिरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, इसकी वजह से क्वाइट एक्सपिरेशन होती है। इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स कर जाते हैं, डायफ्राम असेंड कर जाता है, टोन ऑफ डोमिनल मसल जो है वो भी ज्यादा होती है, तो एक्सपिरेशन नॉर्मल क्वाइट होती है। अब फोर्स अगर आपने एक्सपिरेशन करनी है तो क्या होगा, ये सारी जो मूवमेंट्स हो रही हैं इनकी और एक्टिविटी बढ़ जाएगी। फोर्स, ठीक है, ये मसल्स, इन मसल्स की तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंटरकॉस्टल मसल्स की टाइप। ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा कंट्रैक्ट करते हैं। बेटा ये पेज इसमें यहाँ पे नहीं है, ये मैं जो आपको बातें बता रही हूँ ये KLM में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं लिखी हुई। सो आई गिव यू ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे मैं आपको बताऊंगी, आप ये लिख लेना, बिकॉज ये KLM में नहीं लिखे हुए। तो फोर्सिबल कंट्रैक्शन होती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। आप देखिए, अगर आप जोर से एक्सपिरेशन आप करना चाहें तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन जब आप करते हैं स्ट्रेंथ के साथ, तो आपके जो टमी के मसल्स हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, वो कंट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटस लंबोरम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल है, वो 12th रिब को नीचे खींचता है। इंटरकॉस्टल मसल ज्यादा कंट्रैक्ट करते हैं, रिब्स को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये सारे जो मसल है, सीरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर मसल्स भी होते हैं, दिस आल्सो प्लेज अ माइनर रोल। BD का आई डोंट नो, BD का मुझे याद नहीं है पेज नंबर, या आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये फोर्स्ड एक्सपिरेशन में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल की ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में आ जाते हैं कि बेबीज में, एडल्ट्स में, फीमेल में, मेल में किस तरह की रेस्पिरेशन होती है। तो बेबीज में क्या होती है कि जनरली इनिशियल ईयर्स में रिब्स जो है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल होती है, उनकी जो है वो बेसिकली क्वाइट रेस्पिरेशन डायफ्राम की वजह से होती है, इनको हम कहते हैं एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है। और उसके बाद जैसे एडल्ट आ जाता है, सेकंड ईयर से रिब्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। जो हेड रीजन है दैट इज सुपीरियर, एंड द anterior end of the rib is a little inferior at an inferior level.
तो एडल्ट में क्या हो जाता है, फीमेल की थोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है, और मेल में एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। थोरेसिक एब्डोमिनल दोनों होती है, लेकिन मेनली एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। अब अप्लाइड एनाटॉमी थोड़ी सी हम कर लेते हैं, बिकॉज 4-5 मिनट ही रह गए हैं। तो चेस्ट पेन, अब आप चेस्ट पेन की तरफ अगर आए तो चेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पेन हो सकती है। अप्लाइड एनाटॉमी में हमें बाद में करनी पड़ेगी। तो चेस्ट पेन जो है, चेस्ट के अंदर जाहिर है रिब्स भी हैं, मसल, चेस्ट के मसल्स भी हैं, बल्कि एंटीरियर एक्सियोपेंडिकुलर, पोस्टीरियर एक्सियोपेंडिकुलर रीजन, ये भी थोरेसिक एरिया में आते हैं। प्लस अंदर जो लंग्स है, हार्ट है, ये सारी चीजें जो है दे कंट्रीब्यूट, दे मे बी अ रीजन फॉर चेस्ट पेन। वहाँ से थोरेसिक एरिया से एसोफेगस भी गुजर रही है, ठीक है, तो उसमें भी सब बर्निंग सेंसेशन होती है, वो भी चेस्ट पेन करती है। सो देयर आर मेनी रीजंस। जब चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है तो आपने पहले उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, फिर उसके आप एग्जामिन करते हैं, और इसी तरह फिर आपको पता चलता है, आप आहिस्ता आहिस्ता डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते हैं कि चेस्ट पेन क्यों हो रही है। बकेट हैंडल मूवमेंट से साइज कैसे इनकी, बकेट हैंडल मूवमेंट जो है वो साइड से जो ट्रांसवर्स है ना, उसका जो एंगल का एरिया है, ये जब इंक्रीज करता है तो ये क्योंकि इसकी जो इंक्लिनेशन है रिब की ऐसी है कि सुपीरियर से वो इनकी इंफीरियर की तरफ जा रही है, तो नीचे वाले भी जो रिब्स है ये जब एलिवेट होंगे तो थोड़ा सा ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ जाता है इसका। बकेट हैंडल मूवमेंट क्या करती है, लोअर 6 रिब्स पे होती है, और जैसे वो लोअर 6 रिब्स को वो ऊपर एलिवेट करेगी, एंगल को एलिवेट करेगी, तो ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है, ठीक है। रिब फ्रैक्चर्स, अब रिब फ्रैक्चर में क्या है कि रिब जो फर्स्ट रिब है वो तो मोस्टली फ्रैक्चर वो बड़ी एक स्टेबल पोजीशन पे होती है, क्लेविकल के साथ होती है, प्रोटेक्टेड पोजीशन पे होती है। बाकी रिब जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है, इंजरी जिस तरह एक्सीडेंट्स वगैरह में रिब फ्रैक्चर हो जाती है। तो अब अगर रिब एक रिब फ्रैक्चर है या एक जगह पे फ्रैक्चर है, तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि वो जो ब्रोकन एंड है वो लंग्स को डैमेज कर सकता है, या मसल की तरफ जाएगा या लंग्स की तरफ को डैमेज कर सकता है। या फिर ये होता है कि रिब्स जो है वो दो जगह से फ्रैक्चर हो जाती है, या 2-3 इकट्ठी रिब्स जो है वो एक जगह से भी फ्रैक्चर है और दूसरी जगह से भी, तो एक पोर्शन ऑफ रिब्स जो है वो सेपरेट हो जाता है। अगर दो जगह से फ्रैक्चर हो गई रिब, तो एक उसका पीस अलग हो गया, इसी तरह 2-3 रिब्स जो इकट्ठा, वो जो रिब का पीस है, दिस डज नॉट मूव विद द नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन। तो रिब फ्रैक्चर्स में उसको फिर हम कहते हैं फ्लेल। फ्लेल चेस्ट को ये होती है कि उसमें वो रिब्स जो है 3-4 रिब्स जो है वो दो जगह से फ्रैक्चर हो गई हैं, तो एक पोर्शन जो है रिब का वो बिल्कुल ही अलग रह गया, और वो जो मूवमेंट चेस्ट एक्सपैंड करती है, इट गोज इनसाइड एक्सपैंड करने की बजाय, और जब चेस्ट जो है वो वापस अपनी जगह पे होती है तो इट गोज आउटसाइड। तो ये पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो जाती है, उसकी ऑपोजिट मूवमेंट हो जाती है। तो दिस इज द रिब फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो डेंजरस हो सकते हैं, और फ्लेल चेस्ट इसको हम कहते हैं। थोरैकोटॉमी, व्हिच इज कॉटमी, जहां भी आएगा इसका मतलब है कि यू ओपनिंग अप समथिंग। तो थोरैकोटॉमी, थोरैक्स को आपने ओपन करना है। इंटरस्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस के एरिया से भी आप इंसिजन देके यू कैन एंटर द थोरैसिक रीजन। रिब एक्सिजन भी कर सकते हैं। रिब एक्सिजन में क्या होता है, अगर आपने करनी है तो इसकी पेरियोस्टियम, रिब्स के एरिया में जाके पेरियोस्टियम को पहले इंसिजन देते हैं, रिब से निकाल लेते हैं और फिर पेरियोस्टियम को जोड़ देते हैं। तो एंटीरियर थोरैकोटॉमी भी होती है, पोस्टीरियर थोरैकोटॉमी जो है वो एक सर्वाइकल वर्टेब्रा के साथ अगर रिब हो जाए तो सर्वाइकल रिब होगी, लंबर के साथ होगी तो लंबर रिब होगी। सर्वाइकल वर्टेब्रा रिब है वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द लंबर रिब, और ये